مہینے ہیں، غور سے سنیے گا، 2 مہینے. ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے. ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر. اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض اوقات ہواؤں کا سیلاب آتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں بگولا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سیلاب ہے ہوا کا، اور اس کے سامنے جو چیز آتی ہے، وہ جہاز ہے، وہ بلڈنگ ہے، وہ گاڑی ہے، اس کو گھماتا ہے، اور گھما کیسے لے جاتے. مجھے یاد ہے یہاں شکرگڑھ نارنگ منڈی اس طرف ایک دفعہ ہوا کا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا. ٹریکٹر اٹھا کے لوگوں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے تھے، اور کوئی ٹریکٹر کہاں پڑا ہوا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ شہرائے کراکرم، شہرائے ریشم بن رہی تھی. میں وہاں تھا، وہاں ہوا کا سیلاب آیا، سیلاب سے مراد طوفان آیا. ہمارے تارکول کے تارکول کے ڈرم سوچو کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ نہیں تھے. کہاں گئے؟ کوئی چوری نہیں کر سکتا. کئی عرصے کے بعد پہاڑوں پہ گئے تو وہاں پڑے ہوئے، ہوا نے اٹھایا وہاں پھینک دیا، پتھر اٹھائے پھینک دیے. میں وہاں کھڑا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا تھا. آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے. اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طوفان آیا ہوگا، اور پھر پتھر اڑے ہوں گے، اور پتھر لگے، اور زمین یہاں سے اٹھی، اللہ نے آسمان تک لے گئی. اتنا اونچی گئی کہ مرغوں کی بانگیں آوازیں بھی آسمان والوں نے سنی، جانوروں کی بھی. اللہ نے وہیں سے زمین کو نیچے پھینکا. آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، کوئی چیز وہاں ڈوبتی نہیں ہے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. آدھا اسرائیل میں ہے، آدھا اردن میں ہے. کوئی ایسا سیلاب ہے جو نظر نہیں آتا، آنے والا ہے. تیاری کریں، سوچیں. نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، اور ایسے بہا کے لے جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. بعض اوقات نسلوں کو برباد کرتا ہے، بعض اوقات انسانوں کو برباد کرتا ہے، اور بعض اوقات خاندانوں کو برباد کرتا ہے. بربادی کرتا ہے، اللہ کا نظام ہے. میں ہاروت اور ماروت کے اس بابل میں گیا جہاں سکندر اعظم 32 سال کی عمر میں مرا تھا، جس نے حکومتوں کو فتح کیا تھا. اور اس کنویں پہ گیا جہاں فرشتے تھے. قرآن میں ہے ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا. وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے. اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، دونوں جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ عمل کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اگر نہیں کرو گے یہ فائدہ ہوگا. وہ آزمائش تھی کہ کون آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون آزمائش میں بہہ جاتا ہے. سفر کے مہینے میں ایک ایسا نظام آ رہا جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے گا. کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی، اور کسی کی طلاقیں، اور کسی کے جھگڑے، اور کسی کی لڑائیاں، اور کہیں نفرتیں، اور کہیں خون ریزی، اور کہیں کیا 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 کیا. لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے. جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ایک سیلاب آنے والا ہے. جیسے کوئی فتنے اٹھتے ہیں نا تو سیلاب آتا ہے، بڑے بڑے استقامت والے ہل جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں. ہاں، پھر ان کے سامنے دلیل ہوتی ہیں، ہمارے گھر والے ساتھ نہیں دیتے، فلاں کہتے ہیں ماں کی خدمت ہے، فلاں کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہاں کوئی ترقی، کوئی کامیابی نہیں پڑی. اور فتنے اٹھتے ہیں. جتنے خوش قسمت انسان ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات اعمال پہ لگے ہوئے ہیں، میں ان کو شاباش دیتا ہوں. کتنے خوش قسمت ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. اور بعض اوقات فتنہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے.
सोच लीजिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। फितना आता रूप और रंग बदलता है। मैंने माफी मांग ली है, वो माफी मांगना नहीं होती, वो अपना रूप और रंग बदलता है फितना, ताकि जो अमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में वो मुतमईन हो जाए कि फितनों ने माफी मांग ली है। नहीं नहीं, ख्याल करना, इनके धोखे में ना आना। एक और गहरा धोखा है, हमारी ताकतवर दुआएं, हमारे ताकतवर अमल, हमारे ताकतवर तरीन अमल नहीं रुकेंगे। हम अपनी ताकत में अमाल की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, फितनों के रूप, फितनों के धोखे में नहीं आएंगे। तो सैलाब आने वाला है, उसके लिए क्या सोचा, और जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए क्या सोचा। जो मौजूदा सैलाब है इसके लिए मैं एक अमल कराऊंगा। आइंदा जुमेरात पानी की बोतल कहीं भी, कहीं से ना मिले, तस्बीखाने में पड़ी है पूरी दुनिया में, वो बोतल जाके किसी नहर में डाल दें, दरिया में डाल दें, समंदर में डाल दें, कहीं पानी में डाल दें। ये सीवरेज के पानी गटर नाली में नहीं। आला हजरमी बहुत बड़े सहाबी हैं जिन्होंने इस सैलाब के निजाम का एक अमल किया है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। बादशाहों की मुसलसल वार्निंग आ रही है, आपकी मोबाइल की टोनों में भी ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं, ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। उस बादशाह की जरूरत है जिसका गलबा सारी निजाम पे, सारी कायनात पे है। उस बादशाह की जरूरत है। आइंदा जुमेरात एक अमल कराऊंगा, पानी हो, उस पानी पे अमल कराऊंगा और तारीख बताऊंगा उसकी कि पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ एक 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित है, और वो पानी जाके पूरी इंसानियत की नियत करके किसी दरिया, समंदर, नहर में डाल दें। आप कर लेंगे भला भला। आप चाहे ऊंची जगह पे रहते हैं, आप कहते हैं मुझे मेरे पर पानी का सैलाब नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना निजाम भी बता दिया, तो जितनी ऊंची जगह पे रहे, ऊपर से चाहो तो ऊपर से सैलाब ले है या नहीं है। ये जो बादल फटना कह रहे हैं, बादल फटने में कितना पानी आया, क्या बताते हैं वाकयात जो मौजूदा हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कितना पानी आता है, हाँ? गाड़ियां, बसें, हर चीज बह के चली जाती है। इतना पानी तो आता है। एक तूफान होता है, बादल फटने का एक निजाम होता है, एक तूफान होता है। हाँ, आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह पानी की बोतल भर के लाइएगा। ना मिले तो तस्बीखाने से बोतल लेके, ये कूलर वाला पानी, जमजम के कूलर का पानी, हर कूलर से एक घोंट भर लें, घर जाकर पिए और इसका कोई पानी में डाल दें, बहते पानी में। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि पानी के नीचे कौन सी दुनिया है, पानी के नीचे के फरिश्ते कौन से हैं। यह बताएं, हजरत मिकाईल के जिम्मे क्या ड्यूटी है। बारिश का निजाम, मिकाईल। मालूम हुआ कि कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बटी हुई अल्लाह ने तकसीम की हुई हैं, कुछ बारिश के, कुछ पानी के, कुछ निजाम है, बड़ी हुई है, कोई निजाम है। आइंदा जुमेरात तैयारी करके आइएगा और इस जुमेरात आने वाले सैलाब की तैयारी करें। जो सफर के महीने में हर साल एक सैलाब आता है, एक सैलाब आता है। और बताओ, गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, द्रूशी पढ़। मेरे आका का फरमान है, मेरे हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात जो होंगी वो नजर बद से होंगी। और नजर को 3 चीजें
नजर से बंदा 3 चीजों की वजह से बच सकता है। फिर सुने गौर से, नजर बद से जो बंदा अगर बचेगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले कलाम इलाही, वो कलाम इलाही। दूसरा फरमान मुस्तफा, जिसको मसनून दुआएं कहते हैं। कलाम इलाही से मुराद कुरान, फरमान मुस्तफा से मुराद मसनून दुआएं। और तीसरी चीज नजर से जो बचता है, किसी की नजर में रहता है तो नजर से बचता है। एक मुखलिस मुझसे बैठ हुए सन 2000 में गालिबन, उस दिन से आज तक एक लफ्ज कहते हैं, बस निगाह दुआ, बस निगाह दुआ, बस निगाह दुआ। लोगों को समझ ना आई कि वो फकीर कहता क्या, निगाह दुआ। और सुनो गौर से, वो निगाह दुआ मेरी नहीं है, मैं खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है। बच्चे को सब कुछ दे दो, अम्मा ना दिखाओ, उसको चुप करा के दिखा दो। उसको दुनिया की हर चीज दो, अम्मा ना दिखाओ, बच्चे को मां ना दिखाओ। उसको निगाह चाहिए। जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों की आंधियों में, जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों के तूफानों में बह जाते हैं, बह जाते हैं। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का गौल है, जिसे कहते हैं ना शैतान अबियस, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचकी चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है। 2 नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। उसने कहा पत्थर तोड़, तो कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा, ठा वो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, और रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पहले हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, गनमैन होते थे हुजूर के। गनमैन सिक्योरिटी गार्ड रखना कोई नाफरमानी नहीं, हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मैंने कई लोगों से तब से सुने, फलां बुजुर्ग की देखे जी वीडियो है, उनके साथ गनमैन है। हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे दिन और रात में। आखिर एक दफा ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब, आप लोगों को एक तरफ कर दें, अब हमने खुद बराह रास्त आपकी सिक्योरिटी का अपने जिम्मे ले लिया। और ये इतना सा अल्लाह इससे पहले भी ले सकते थे, अल्लाह ने पहले क्यों नहीं लिया? क़यामत तक के इंसानों को बताने के लिए कि अगर कोई हो तो सिक्योरिटी रखना जायज है। बाज बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, उनकी सिक्योरिटी है, इंसान को पता नहीं होता, इंसान एतराज कर बैठता है। तो क्या बात कर रहा था?
नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्ला अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। हमारा यकीन है मेरे आका रोज़े अतर में जिंदा है, आज भी जिंदा है। हम जो दरूद पढ़ते हैं मेरे हुजूर को, यहां से फरिश्ते वहां बरह रास्त सुनते हैं, बरह रास्त। हाथ मुबारक निकला रोज़े अतर से, लोगों ने चूमा, वाक़यात है। आवाज आई, मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम, सलातो सलाम पेश किया, वाक़यात है। तो हुजूर ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ काम, एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं, बस नजर लगाते, और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। पूरे सफर के महीने में इनके लश्कर का एक सैलाब निकलता है, सैलाब उठता है, और वो सैलाब नजर लगाता है। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने, इतना माने, इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अंग्रेज नजरे बद को इतना माने। अगर नजरे बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें। सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजरे बद के ऊपर। हम एकत्र कर रहे हैं, मजीद लोग इसके लिंक भेज रहे हैं, जो भेज रहे हैं हम उस पर डाल रहे हैं। आप भी तलाश करके भेजें। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का। जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है, सफरों पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजरे बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को, और दुकान, मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजरे बद लगाते जाओ। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजरे बद से होगी। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिर थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजरे बद इसमें डसे हुए या बीमारियों और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजरे बद के मारे और डसे हुए। तो सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात नजरे बद, जिन्नात नजरे बद, उनका काम सिर्फ नजरे बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजरे बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां पूरा साल तेज करते रहेंगे पूरा साल। अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेज़े पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, अराफात के मैदान में खड़े थे, एक जगह फंस गए, गेट खोलना था, अब अमाल कर रहे हैं। मैंने नेक फाल समझा, मेरे साथ छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा ये बताओ गेट खुलेगा, हम इधर से जाएं या कोई और रास्ता अख्तियार करें। हर तरफ इंसानों का तूफान था, अराफात में जो मुजदलिफा जा रहा था। कहने लगा यहां ठहर जाएं, गेट खुलेगा। मैं कहा यकीन है अब खुलेगा, और अनहोनी ऐसी हुई, वो गेट खुला, और जब खुला ना तो यहां इंसानों का एक तूफान ऐसे निकला, ऐसे ही एकदम दीवार हटेगी, और वो याजूज माजूज और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसान। और इंसान ने हत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा जो गुमान से बालातर है।
ऐसे डरेगा गुमान से भरा। एक खातून फौत हो गई, उसका जनाजा जा रहा था। जनाजा उसने पाया पकड़ा और लगते लगते जनाजा खंबे से जो लगा, मई उठ बैठे। कुछ अरसे के बाद चलते 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 फिर फौत हो गई। पीछे बंदा कहने लगा, कहेगा खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कहीं फिर न लग जाए। एक दल ऐसे तूफान उठेगा, पर जिसके साथ सूरत कुरैश है ना, वो कहते सूरत कुरैश बचा के, सूरत कुरैश बचा के, बच के ख्याल करना, ये बंदा सूरत कुरैश वाला है, हटो हटो हटो। अपने हजरत के साथ जा रहा था, कई बार सुनाया, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, हजरत मुस्कुरा दिए तो फरमाने लगे, जिन्नात देखेगा? जी। ऐसी उंगली ऐसी की जैसे विक्ट्री बनाते हैं, एक आंख के साथ। मैंने ऐसे देखा ना, कोई जन वहां, कोई वहां, कोई बच्चे खेल रहे, कोई क्या कोई क्या। तो एक बच्चा कहने लगा दूसरे बच्चे को, इनको छेड़े मजा आएगा। ऐसे खाम खा छेड़छाड़ मजा आएगा। एक बाबा बैठा था पुराना, बकवास नहीं आती मार कर लो, हाथ ना लगाना इनको, ये हिजबुल बार का आमिल है। मेरे हरसत के बारे में इशारा कर, मेरे बारे में नहीं, उनके बारे में इशारा करता, ख्याल करना, इनको हाथ ना लगाना, ना छेड़ना, ये हिजबुल बार के आमिल जा रहे हैं। अभी सफर में वो चिल्ला भी शुरू है, ओ जो बच्चे दौड़े। तो जो सैलाब आने वाला है, जिसमें सूरत कुरैश जिसके पास सौ गए, सूरत कुरैश। और बताऊं, सूरत कुरैश फितनों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसमें अमन है ना, फितनों को खत्म करने के लिए नंगी तलवार है। ये जो फितने हैं, जो इनको खत्म करने के लिए सूरत कुरैश पढ़ेगा, हाँ, उसको लौट के जो चीज मिलेगी हैरत अंगेज मिलेगी, बरकत, ताकत, कुव्वत। फितनों को खत्म करने के लिए नंगी तलवार है सूरत कुरैश। हासिदीन, दुश्मन, शर पसंद, फितने, उनको खत्म करने के लिए, उनकी जड़ें खत्म करने के लिए, उनकी नस्लों को खत्म करने, बहुत ताकतवर। अगर कोई इस नीयत से पढ़ेगा, वो तासीर 1000 गुना पाएगा। मेरी बात ऐसे आम अल्फाज नहीं है, मैं बड़ी वसूख और सनत के साथ बातें बैठ के करता हूं, फिर भी अपनी बात का दावा नहीं करता। 1000 गुना तासीर पाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फितनों की को खत्म करने की नीयत करके गेंद को जिस जोर से दीवार पे मारोगे, उसी जोर से वापस आएगी, उसी ताकत से वापस आएगी, उसी ताकत से वापस आएगी। तो एक सैलाब होने वाला है, जिसमें सिर्फ मैंने सैलाब का ये एक रेला बताया है। उस रेले में वो होंगे जिनका काम सिर्फ नजरे बद लगाना है। इस तरह के कई रेले आएंगे, ये पहला रेला है। ये सैलाब की पहला निजाम है, छल का, सैलाब का। एक सैलाब आने वाली है, छल आने वाली है, और वो रगड़ देगी, और उसका काम सिर्फ नजरे बद डालना है। तो आप में से जल्दी जल्दी बताएं, कौन तैयार है नजरे बद डलवाने के लिए? एक ये तैयार है, वो तैयार है, ये तैयार। शाबाश, सद्दा जी में तो लगती हैं, ये मेरा 10 सुन रहा हूं भाई, ईमान को शाबाश है, सुते पेन सारे आके हाथ तैयारी से, वाह भाई वाह। आधा में छोड़ना वैसा हुण कोई वेनी सट्टी, कौन वे किसी दर्द मंदा दे जख्म ते वल कट्टी, सारी उम्र मगरूरियां असा रोंदियां उम्र कट्टी, सारी उम्र मगरूरियों असा रोंदियां उम्र कट्टी। मैंने कहा कौन है जो नजरे बद लगवाने के लिए तैयार है? हाथ खड़े कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं, ये सोए हैं। देखे ना बात का टेम्पो, मुझे याद था मैंने हाथ खड़े करवाने हैं, मुझे याद था मैंने हाथ खड़ा करवाना है। बात के दरमियान में मैंने बात कहा, अब बताओ कौन तैयार है? कहते हैं हम तैयार है नजरे बद डलवाने के लिए। आओ पीले जिन्नात तूफान, आओ हम पे नजरे बद डालो। तैयार हो? आमीन कह दूं? बोलो आमीन कह दूं? एंड वादा करो नहीं सोओगे, इसलिए उठाता हूं। आज मैंने किसी को नहीं उठाया, मैं क्या चुप कर इनके हाथ खड़े करवाऊंगा। मैं आज महसूस करे मैंने किसी को नहीं उठाया, एक को भी नहीं उठाया। आखिर में मैंने कहा इनके हाथ खड़े कराऊंगा, कौन है नजरे बद डलवाने के लिए तैयार है? वो कहते हम तैयार। उस शख्स के तुमसे मरासम हो तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर, खाबीता परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, ढूंढा जिससे वक्त की दीवार गिराकर, मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर।
मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर, वो मिल भी गया, मुठ भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। मैं कहता हूं दिल में रहें, मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया, अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था। कहां जाओगे मुझे छोड़कर, मैं पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। मेरे दिल में था कि कहूंगा उससे जो दिल पे रंजो मलाल था, मेरे दिल में कहा कि कहूंगा उससे जो दिल पे रंजो मलाल था। जब वो आ गया मेरे सामने तो न रंज था न मलाल था, पसे पर्दा सुन के तेरी सदा मेरा शौक दीद जो बढ़ गया, मुझे इस्तिराब कमाल था, यही वजद है यही हाल था। मैंने तो कहा था मेरे दिल में रहा कर, जब दिल में नहीं रहेगा तो नींद में आएगा, फिर कहेगा आओ जिन्नात मुझ पे नजर डालो, फिर हाथ खड़े करेगा। इसका मतलब है मैं जो उठाता रहता हूं वो खैर है, उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है, और जगाते रहना ही खैर है। बाद लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकाट करेंगे, पक्का कर लो, ना जगाना खैर नहीं है। तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, इससे बड़ी कोई सजाई तो नहीं है। हाँ, ये मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं, बड़ा गहरा है। तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया मुर्शिद ने या बड़ी ने, इससे बड़ी कोई तेरी सजा ही नहीं है। तो सैलाब आने वाले हैं, उसकी तैयारी कर ले, और इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। और इसके पढ़ने में अंग्रेजों पे जो सैलाब आया, हिंदू पे, सिखों पे, ईसाइयों पे, दुनिया में जहां जहां सैलाब है, हमारे दिल में सबके लिए खैर खाई का जज्बा हो, सबके लिए खैर खाई का जज्बा हो। जहां जहां अजाब आया, जहां जहां बला आई, पानी के तूफान ने सब कुछ तोड़ के रख दिया, हम बैठ के रोएं। मुसलमान मरे तो रोएं, गैर मुस्लिम मरे तो रोएं, अल्लाह कलमे के बगैर मर गए, हाय क्या बनेगा। हमारे दिल में खैर खाई का जज्बा हो, सबके लिए नफरत का जज्बा ना। खासकर जहां पाक, मुझे एक बंदा कहने लगा जी पता नहीं किस मुल्क में सैलाब आया, अंग्रेजों के मुल्क में, कहने लगा देखने इतने बंदे मर गए, ठीक हुआ। मैं कहना कर रो रो, मेरे दिल में दुख हो, गम हो, रो। तो सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए, और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाए। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना उसके सारे निजाम इस और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है इंशाअल्लाह। तो सूरत कुरैश तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी, और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं दो चीजें, नस्लों की भूख जिसे लोग कहते हैं जरूरत, कभी जरूरत कम ना हो, कभी जरूरत की खातिर धक्के ना हो, और अगर अमन कहते हैं नस्ल 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 दर नस्ल, तो इसमें अल्लाह ने रखा है। वरना खाने के बाद 3 दफा, वरना 101 बार सूरत कुरैश पढ़े, थोड़ी या ज्यादा। फैसला कर लिया,